Welcome to this very special broadcast from the Tribune on the results of the Haryana election. We don't have the results yet, trends are coming in. I'm Jyoti Malhotra from the Tribune, and I have with me my crack team of correspondents, of senior journalists in the Haryana Bureau, right here in Chandigarh. Gitanjali Gayatri on my right, she's the chief of the Haryana Bureau here in Chandigarh. Pradeep Sharma, he covers the BJP, a very seasoned journalist. He's been covering politics for several years. And Bhartesh Thakur, on my right, covers the Congress party. Welcome Gitanjali, Pradeep and Bhartesh to this very special broadcast. हम सब जानते हैं कि अभी हरियाणा एक 6 हफ्ते या 2 महीने के बाद आखिरकार जो है हरियाणा के जो इलेक्शन के नतीजे अब हमारे सामने हैं. The results are trickling in slowly. We don't have any confirmed seats yet. The numbers are falling, sometimes rising for the Congress party, but I think it's very clear that the Congress party led by Bhupinder Singh Hooda is streets ahead of the BJP, which has been in power for the last 10 years. But first, coming from you, Gitanjali, what is your take? You've traveled a little bit in Haryana. Tell us what you find most interesting from the trends that are coming in. The mood was very clear in the field that people were wanting a change. Okay. And the Congress is the only alternative because there is a direct contest between the Congress and the BJP. The smaller regional parties were mostly seen as vote splitters, essentially. Okay. So, it was very obvious that, the people are going to vote for the Congress, but how many seats was a question. So people in the field were only debating on whether this is going to be a tsunami, this is going to be a storm, or this is only going to be a wave. Okay, the wave, the tsunami and the storm. Pradeep, I'll come to you. Abhi to, I think it's between 57 and 60 odd seats जो कांग्रेस पार्टी के खाते में अभी जो आ रही है. लेकिन आप मुझे ये समझाइए, ये बताइए हमारे दर्शकों को कि what is the importance of the Bhupinder Hooda potential victory, और जो बीजेपी जो 10 साल से जो कमान पकड़े हुए बैठी थी इधर चंडीगढ़ में हरियाणा की, इस नतीजे का क्या मतलब हुआ? ज्योति, ऐसे है, जो बीजेपी का जितना भी 10 साल का टेन्योर रहा है, तो उसमें जो एंटी इनकम्बेंसी इतनी हो गई थी बिकॉज लोगों में, जैसे हरियाणा में कहते हैं, सरिया निकलना, एरोगेंस बहुत हो गई थी पावर की. ये जो सरिया वाला जो फ्रेज है, आपने भी मुझे बहुत दफा बताया, मैं भी जब गई थी, कि एक गले से सरिया निकालना, इसका क्या मतलब हुआ जो हरियाणा में कहते हैं? हरियाणा में कहते हैं भी लोग जिताने के लिए नहीं, हराने के लिए वोट डालते हैं. People vote for to defeat a party which has become arrogance. So the arrogance of the former Chief Minister Manolal Khattar and Team Manohar was evidently visible in the administration because he, as you know, he was not a politician, not a people's leader, politician as such. He was imposed from the center by the BJP because first time he contested the election 2014. So he was made the chief minister, and the person who led the BJP to victory in 2014, Ram Vilas Sharma, he was made to name his purpose. Okay. So where is Ram Vilas Sharma today? Is he over and out? I mean, no politician is ever over and out. But as of now, he seems to have been included in the Margdarshak Mandal. Okay. So because he not been given the ticket for this elections, despite his best efforts till the last moment. Although he filed nomination as independent candidate, but he withdrew because he was either pressurized or he wanted to go with the BJP. So we will talk about why the BJP is losing, or at least what the trends are. Although it seems right now that the number of seats in favor of the BJP are going up. It's about 30 right now at 9:42 in the morning. Yeah. And the Congress party's seats from a high of 60 or 61 seem to be dropping a little bit, around 55, 56, 57. Bhartesh, आपकी राय में what is going on? ये क्या tsunami जैसे गीतांजलि ने कहा? Is it a tsunami? Is it a wave? How would you describe it? मैं इसको एक वेव की तरह मानता हूँ, क्योंकि आपके आवाज नहीं आ रही मुझे. मैं इसको एक वेव की तरह मानता हूँ क्योंकि 10 साल हो गए थे बीजेपी को सरकार में, और काफी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी हमने देखी ग्राउंड पे जो हम गए रिपोर्टिंग के लिए,
और लोग अच्छा ये बताइए सबसे पहले अपने हमारे दर्शकों को कि आप कहाँ कहाँ गए, कौन से इलाकों में? मैं भिवानी गया था और महेंद्रगढ़ जिले गया था। तो वहां मैंने एक चीज नोट करी कि जो जाट मतदाता है वो कांग्रेस की तरफ उनका रुझान है, और वो हो सकता है कि 80% के आसपास जो जाट मतदाता हैं वो कांग्रेस को ही वोट करेंगे। लेकिन जो अहीर हैं वो बीजेपी की तरफ उनका रुझान था, और वो राव इंद्रजीत सिंह की वजह से और मोदी की वजह से वो उनका रुझान अभी भी बीजेपी की तरफ है। और उन्होंने, कई लोगों ने तो मुझे इतना कहा कि बीजेपी आए या जाए उनकी वोट बीजेपी को जाएगी। लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है? भूपिंदर सिंह हुड्डा जो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, सिर्फ हरियाणा में ही नहीं लेकिन देश में बहुत बड़े नेता हैं और एक सीनियर पॉलिटिशियंस है, बहुत 40-50 साल से उन्होंने राजनीति करी है। तो आज की तारीख में डू यू से दैट दिस इज अ रेड लेटर डे फॉर भूपिंदर सिंह हुड्डा? जी बिल्कुल, और पोटेंशियली एटलीस्ट, अभी तक हम कुछ कंफर्म नहीं कर पाते ऑब्वियसली। देखिए 70 से ऊपर टिकट उनको मिली है, और उनको टिकट मिलने का क्या मतलब कि 90 सीटों में से जो 90 असेंबली, हरियाणा असेंबली में जो 90 सीटें हैं उसमें आप कह रहे हैं कि 70 कैंडिडेट्स 70 से ऊपर, 70 से ऊपर, हाँ, अच्छा 75 के आसपास कर लीजिए कि उनके कैंडिडेट्स उनके कैंप के या उनका उसमें राय ली गई वो टिकट देने से पहले। तो ऑब्वियसली जितने लोग एमएलएस बन के आएंगे उसमें से ज्यादा लोग उनके ही कैंप के होंगे, और उनका शुरू से ही ये बयान रहा है कि वो एक प्रोसेस, हमेशा या सारे इंटरव्यूज में एक प्रोसेस समझा रहे हैं कि भी हमारे पार्टी में पहले सेंटर से ऑब्जर्वर आते हैं, वो एमएलएस की राय लेते हैं, और जो एमएलए जिसको कहते हैं उसको हाईकमांड सी बनाए। तो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि भी क्योंकि उनके ही एमएलए आएंगे तो ज्यादा चांस ये है कि उनको सीएम के लिए कांग्रेस आगे करेगी। तो गीतांजलि ये बताइए कि आप दोनों आपने दोनों कांग्रेस बीजेपी दोनों कवर की है, लेकिन दोनों पार्टीज, तो आज की तारीख में मान लीजिए जैसे आपने कहा कि भूपिंदर सिंह हुड्डा या कांग्रेस पार्टी की वेव है या सुनामी, इसका जायजा हम बाद में लेते हैं, बट व्हाट डज दिस मीन फॉर द कांग्रेस पार्टी? एक तरफ ये भी आप सबने रिपोर्ट ये भी करी है रिपोर्टिंग कि द पार्टी इज अ हाउस डिवाइडेड। एक तरफ भूपिंदर सिंह हुड्डा है, दूसरी तरफ कुमारी शैलजा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाएं। So basically what my understanding is that the Congress, despite being a divided house, was really wanting to come back to power after being out of circulation, so to say, for the last 10 years. 10 years. So despite the divisiveness within the party, they were united with this bond that, you know, we have to come back to power. So there was no undercutting in any election this time. You know, say if Shelja's people got a seat at A place, or Huda's people got a seat at B place. Earlier there used to be this trend that, you know, you will try to make that person lose. This time everybody was working towards a win. Okay. And secondly, the people across the state were so tired of the BJP. They had this party fatigue. So they wanted a change. You wanted to give another chance to somebody else. Okay. So that was the. But they tell me the Jat vote. Explain the caste dynamics of Haryana. Jyoti, the caste is Jat is the dominant caste in Haryana, with at least 22 to 23% votes. Okay. And then come the scheduled caste. Dalit vote is around 20%. And the OBCs, all the castes which come under the other backward classes, Gujars, Yadavs, Sainis, they constitute around 30% of the votes. Okay. So that's why the BJP, the very, the mantra of BJP winning 2014 and 2019 election has been the Jat versus non-Jat. They had polarized the non-Jat votes in its favor, which means that if you polarize OBCs and Dalit votes in your favor, then you stand to chance to win. Okay. Yeah, that's what happened in the last two elections, which is apparently not happening in this elections. So, okay, so they, between themselves, the Dalits and the OBCs constitute around 50% of the total electorate. So I'm going to ask you to hold your thought about this Jat, non-Jat, because there's been a lot of conversation in these last 6 weeks
about how the BJP was trying to polarize this between the Jat and the non-Jat. Because I'm just going to throw back to the studio where reactions from politicians are coming in. And the first reaction is from the caretaker Chief Minister of Haryana, Naib Singh Saini, or should we say outgoing Chief Minister. Abhi hum ऐसा description नहीं देंगे, but back to the studio. तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ बन रही है और हमने हरियाणा की पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के ईमानदारी से हरियाणा की सेवा की है। हरियाणा को आगे बढ़ाने का ईमानदारी से हमने काम किया है। हमने जो पहले क्षेत्रवाद पनपता था उस क्षेत्रवाद के ऊपर भी विराम लगाया है। हम जो परिवारवाद बढ़ता था उसके ऊपर विराम लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो भेदभाव लोगों के साथ होता था उस भेदभाव को भी हमने समाप्त करने का काम पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। ईमानदारी से सबका साथ सबका विकास लेकर के हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आगे भी है हमारी सरकार ईमानदारी से हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करेगी। देखिए एग्जिट पोल तो चलते रहते हैं मैडम, आपको भी मालूम है। पीछे राजस्थान के भी चुनाव थे तब भी एग्जिट पोल आए थे, मध्य प्रदेश के चुनाव थे तब भी एग्जिट पोल आए थे, छत्तीसगढ़ के चुनाव थे तब भी एग्जिट पोल आए थे, उत्तराखंड के चुनाव थे तब भी एग्जिट पोल आए थे। हम एग्जिट पोल के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, परंतु उनका जो रिजल्ट है, रिजल्ट देखने को कुछ और मिलते हैं। हरियाणा के अंदर भी सेम रिजल्ट मिलेंगे। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। ये जो भाजपा सरकार है इन्हें सिर्फ नफरत की राजनीति, गाली गलौज की राजनीति और असामाजिक चीजें बोलने की राजनीति आती। वो प्रेम प्यार की तो राजनीति करते नहीं, विकास की राजनीति करते नहीं। लेकिन जैसे राहुल गांधी जी खुद कहते हैं, हमें तो एक मोहब्बत की दुकान खोलनी, सबको साथ लेना, बड़ा बुजुर्ग हो, नौजवान हो, मातृशक्ति हो, धर्म बिना देखे हमें हर व्यक्ति का हाथ पकड़ के उन्हें आगे लेके जाना है, पूरा मान सम्मान देना है, उन्हें जोड़े रखना है। हम बुरी चीजें किसी को भी नहीं कहते। अगर वो हमारे साथ डिसएग्री भी करते, वो बोलते हैं हम और किसी चीज में विश्वास करते हैं, कोई बात, हमें फिर भी आपका विकास करना है, आपको आगे लेके जाएंगे। ये जो भाजपा सरकार है ये तो डिवाइड एंड रूल सिस्टम इस्तेमाल करती है जो अंग्रेज लेके आए थे, जिसकी वजह से वो 200 साल राज कर गए। हमें सबको जोड़ के आगे लेके जाना है। तो जो भी भाजपा सरकार बोले, भाजपा के नेता बोले, हम बोलते हैं कोई बात नहीं, हम तो मुस्कुराकर उनको बोलेंगे आपका हम बहुत सम्मान करते हैं और एक बार फिर से हम हरियाणा और कैथल का विकास करके दिखाएंगे, आप करो या ना करो। आपको जो बाहरी बोला जाता था, अपशब्द बोले जाते थे, लगता था कि इस चीज के लिए मैं नहीं आया हूँ, अनकंफर्टेबल होते थे? हमें तो शुरुआत से ही पता है, मेरे दादाजी पिताजी इतने साल से राजनीति में, हमें शुरुआत से ही पता है भाजपा सरकार का और भाजपा नेताओं का यही आदत है, क्योंकि उन्हें तो काम करना आता नहीं। वो चुनाव अपने काम के हिसाब से तो लड़ नहीं सकते। अगर लड़ सकते तो हम काम के हिसाब से लड़ ले होते कि देखो सुरजेवाला जी ने कितना काम किया, उसके बाद भाजपा सरकार ने कैथल में कितना काम किया, लेकिन भाजपा सरकार ने कैथल में काम किया नहीं। तो अब वो ये ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे पर्सनल अटैक करें, व्यक्ति पे अटैक करें, उनके परिवार पे अटैक करें। लेकिन मैं खुद बोलता हूँ ऐसे राजनीति चलती नहीं। जो संस्कार मेरे बड़े बुजुर्गों ने, दादाजी ने, पिताजी ने दिए हैं वो काम की राजनीति के। हमें सिर्फ काम करना आता है और हम अपने काम के बल पे लड़ाई लड़ेंगे इस इलेक्शन की, इस चुनाव की नहीं, हर एक चुनाव की। चंडीगढ़ में जाएगा ताकि समग्र विकास जो आप एजेंडा लेकर चल रहे हैं कैथल के लिए वो फुलफिल हो सके। अब अगर आप विधायक बनते हो आपको चंडीगढ़ तो जाना ही पड़ेगा। चंडीगढ़ जाके विधानसभा में हम अपनी कैथल की आवाज उठाएंगे अपने के। अच्छा, जो निर्णय पार्टी हाईकमान लेगा, हमारे मुख्यमंत्री जी जो जब चुने जाएंगे वो लेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे। 25 साल का हूं मैं, उम्र मेरी बहुत कम है, अनुभव इतना ज्यादा है नहीं, लेकिन मैं जानता हूं मैं पूरे प्रांत की सेवा करना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले मेरा काम मेरे कैथल हल्के से शुरू होएगा। पिछले 10 साल जो इस भाजपा सरकार ने हमारे कैथल का नाम नष्ट कर दिया है, कोई विकास नहीं करा, पहले बदलाव यहाँ लेके आने की जरूरत है। उसके बाद अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, पार्टी हाईकमान राहुल जी, सोनिया जी, खरगे जी और हमारे मुख्यमंत्री जी निर्णय लेते हैं कि आदित्य और काम कर सकता है, बिल्कुल मैं लेना चाहूंगा और पूरे प्रांत की सेवा करना चाहूंगा। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और मोहर जनता 5 तारीख को लगा दी थी। औपचारिकता आज गिनती पूरी हो जाएगी। भारी बहुमत से कांग्रेस जीत रही है और हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बना रही है। मुख्यमंत्री जो मर्जी दावे करते रहे,
मुख्यमंत्री खुद ही चुनाव आ गए। बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। हरियाणा प्रदेश ने तय कर दिया है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और मोहर जनता 5 तारीख को लगा दी थी। औपचारिकता आज गिनती पूरी हो जाएगी। भारी बहुमत से कांग्रेस जीत रही है और हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बना रही। मुख्यमंत्री जो मर्जी दावे करते रहे, मुख्यमंत्री खुद ही चुनाव आ गए। हाँ, देखिए, बहुत ही खुशी के साथ मैं समझती हूँ लोकतंत्र के इस महापर्व का हरियाणा विधानसभा चुनाव का आज मतगणना है। झज्जर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जिस प्रकार से आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन दिया है, हमें उम्मीद है यहाँ से थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ जीतेंगे और हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल को किस तरीके से? देखिए, एग्जिट पोल जो आए हैं वैसे तो बहुत ज्यादा फेवर में है कांग्रेस के, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। जब काउंटिंग अब शुरू होगी उसके बाद से ये पता चलेगा और भी उससे ज्यादा सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी, क्योंकि कांग्रेस ने बिल्कुल जो है मुद्दों पर चुनाव लड़ने का काम किया। बहुत एजेंडा था, बेरोजगारी है, किसान है, महिलाएं, बेटियां, हरियाणा की तरक्की। हमने अपने मैनिफेस्टो पर और मुद्दों पर चुनाव लड़ा और जनता ने उस पर आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। झज्जर की जनता ने बहुत आशीर्वाद जिस प्रकार से दिया है, हमने विपक्ष में भी उनकी आवाज को मजबूती से उठाने का काम किया और अब उनको तो ये पता चल गया है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने, हमने विपक्ष के अंदर और बाहर जो संघर्ष किया, उससे जनता को ये उम्मीद भी है कि आने वाला समय कांग्रेस का है और झज्जर विधानसभा क्षेत्र में और पूरे हरियाणा में विकास के कार्य होंगे। देखिए, हरियाणा की जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है और जनतंत्र में, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। जो भी फैसला है वो स्वीकार है पूरी तरह से, लेकिन हरियाणा को इस बार तीसरा विकल्प मिला था। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और हमको पूरी उम्मीद है कि लोगों को लंबे समय से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से लोग परेशान थे, जिस तरह की नीतियां सरकार की थी उनसे परेशान थे और लोग एक तीसरा विकल्प तलाश रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी में लोग आस्था जरूर जताएंगे और बहुत सारी जगहों पर हमको अच्छे नतीजे मिलने वाले। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी Tribune studio, we are discussing the Haryana elections, and it seems as if the roller coaster between the BJP and the Congress party is very much alive. The BJP, which was unfancied, all my colleagues around me have been saying that it could have been or may have been a tsunami or a wave for the Congress party, for Bhupinder Singh Hooda led Congress party in Haryana, but it seems that the BJP is doing much better. About 46, Bhartesh, क्या है latest BJP की 47 is with BJP and 42 with Congress. So इसका how do you explain this, प्रदीप जी, कि 47 हमने तो सबने, अभी तो आप कह रहे थे कि बीजेपी इतना ठीक नहीं करेगी। Even during election, the BJP leaders were very confident. Even day before yesterday, the Chief Minister, the caretaker Chief Minister Naib Singh Saini categorically said that we are forming a government with a clear majority. Yesterday, the BJP chief Mohanlal Badoli said that I specifically pointedly asked him a question, how many seats? Okay, उन्होंने कहा कि देखो majority के लिए 46 सीट चाहिए और 46 सीट हमारी आ रही है। नहीं तो देखिए, अभी तो आप लोग सब कह रहे थे और आपकी रिपोर्टिंग में भी ये था कि आपने लिखा था प्रदीप जी की प्राइम मिनिस्टर मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने लास्ट 2 डेज उन्होंने अपनी रैलीज हरियाणा के अंदर नहीं करी क्योंकि उनको लगा कि एक मैस फॉलोइंग उनकी नहीं आ रही है। वो देखो, एंटी इनकम्बेंसी में उन्होंने 48 घंटे पहले रैली ना की हो, बट जो बैकडोर मैनूवरिंग थी वो तो जारी थी ना। उन्होंने ये बडोली साहब के कहने को हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, वो कहते हैं देखो जी, हमने हर एक सीट का एक माइक्रो मैनेज किया है, उसको सर्वे किया है, उसकी जो इनपुट्स हमारे पास आई है, वी आर गेटिंग अ क्लियर मेजॉरिटी, दैट्स व्हाट दे सेड। बट ड्यू टू एग्जिट पोल, दिस कैकोफोनी ऑफ इवन योर इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स, सब में एक माहौल ऐसा बन गया, एक नैरेटिव ऐसा क्रिएट किया गया जैसे कांग्रेस में इवन surpasses 567 seats. Okay. So एक वो narrative ऐसा बना, but BJP leaders have been very confident and self-assured. But frankly, I want to ask you, अभी तो we cannot say. On the one hand, मैंने भी लिखा कि जब मैं एक दिन का मैं दौरा करके आई हूँ कि ये जो एक very Haryanaism, if you like, which is that गले से सरिया निकालना, the arrogant candidate must be punished. तो अभी हम ये भी कह सकते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जीत रहे हैं या उनकी पार्टी जीत रही है या बीजेपी जीत रही है, बट वी आर ट्राइंग टू एनालाइज कि व्हाट हैज हैपेंड ऑन द ग्राउंड।
from the results. So this up and down, what does it mean to you? What does it show to you? BJP has been harping on this point that the Congress voter is very vocal. So this entire thing around the Congress coming back to her, they are saying our main vote bank will be the silent voter who's staying back, watching from his or her home, and when the day to vote comes, they will vote for us. They have been maintaining that all along, which we have also reported, that they are essentially relying on the silent voter. So, it can be anybody's game, it's too early to say right now. But Bhatesh, I think हमारे यहाँ The Tribune में भी हमने mostly तो यही कहा है कि भूपिंदर सिंह हुड्डा is likely to do much better. काफी उन पे स्टोरीज हुई हैं, उनकी पार्टी पे स्टोरीज हुई हैं. अभी तो उनके कैंप पे तो हार्ट अटैक हो रहे होंगे सबके पास, सब दिल के दौरे, मतलब अपना दिल लेके बैठ के पकड़ के बैठे होंगे. तो ये बताइए कि ये जो आपको क्या लगता है कि कहाँ से ट्रेंड्स आ रही होंगी इस मौके पे, कौन सी एरिया से? नहीं मैम, मेरे को ये लगता है कि जो जितना हम बीजेपी को आंकड़े थे वो बीजेपी उससे अच्छा परफॉर्म करने वाली है, और हो सकता है कि अभी कुछ एक आध घंटे में रिजल्ट्स चेंज हों, लेकिन ये हमने जरूर देखा था कि एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा हाई थी. अगर बीजेपी, मेरे ख्याल से अगर बीजेपी 40 सीट टच करती है या 30 से ऊपर निकलती है तो बीजेपी के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है. तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी की आप भी बात कर रहे हैं प्रदीप जी, तो अगर एंटी इनकम्बेंसी है, इसका क्या मतलब हुआ कि आप जो वोटर है वो एंटी इनकम्बेंसी नाराज है वोटर, ठीक है ना, कि फार्मर का भी जो राइस मिलर है वो भी स्ट्राइक पे है पिछले 2 महीने से. आपकी जो झीरी है जो गांव से आ रही है मंडियों में वो भी नहीं उठ रही. तो फिर एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरी तरफ ये जो प्रो कांग्रेस वेव है, तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा. ज्योति, उसमें ऐसे है बिकॉज जब से ये सोशल डिजिटल मीडिया और यूट्यूबर चैनल आए हैं, जो एंटी इनकम्बेंसी उसको बड़ा एक एम्पलीफाई करके भी दिखाएंगे. तो सोशल मीडिया की चीज वायरल हो जाती है. किसान का प्रोटेस्ट है, अगर 10 किसान भी प्रोटेस्ट करते हैं वो इतना वायरल हो जाता है कि सारा बीजेपी के खिलाफ हो गए, जवान बीजेपी के खिलाफ हो गए. इसमें तो देखिए प्रदीप, उसमें ऐसा देखो, बीजेपी के फेवर में 2-3 चीजें हैं. बीजेपी का एक काडर है, काडर बेस्ड, दे हैव ऑर्गेनाइजेशन, और जो आरएसएस काडर भी इस तरह वो राइट अप टू पन्ना प्रमुख और बूथ लेवल, मंडल लेवल. तो ये पन्ना प्रमुख क्या चीज है? पन्ना एक्सप्लेन टू हमारे दर्शकों को. पन्ना प्रमुख एक बीजेपी का ये इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है जो इलेक्टोरल रोल बीजेपी का है कि आरएसएस का है? ये बेसिकली आरएसएस वाले, इसमें मैक्सिमम जो वॉलंटियर आरएसएस वालों की, बीजेपी आरएसएस एक बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं. तो जितने भी सीनियर मदर ऑर्गेनाइजेशन इज द आरएसएस, इसकी पॉलिटिकल विंग इज द बीजेपी, आइडियोलॉजिकल कह लें, मदर ऑर्गेनाइजेशन कह लें. तो उसमें एक जो पन्ना होता है, एक वोटर लिस्ट में जो पन्ना होता है अराउंड 50-60 जितने भी उस पे नेम्स होते हैं, उस एक बीजेपी के डेडिकेटेड वर्कर, प्रेफरेबली वो आरएसएस का होता है, उसको एक पन्ना इंचार्ज बना देते हैं. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग और माइक्रोमैनेजिंग दैट लिस्ट. वो माइक्रोमैनेज किस तरह होता है, उसमें बड़ी चीजें होती हैं. उसका मैक्सिमम होता है कि बीजेपी को मैक्सिमम वोट उस पन्ने में से 60 में से मैक्सिमम कैसे पढ़े, वो किसी तरह पढ़े बाय फेयर और फॉल, वो हम डिटेल में नहीं जाएंगे. तो वो डोर टू डोर जाके, वो डोर टू डोर भी जाता है, उसमें बड़ा करता है सारा कुछ. उसमें बिहाइंड द सीन बहुत कुछ होता है. कम्युनिटी बड़ा उसमें लेवल प्ले करती है, कम्युनिटी लीडर. तो इस दफा भी आपको लगा है कि यस, वो दैट इज, आई थिंक, बीजेपी इज डूइंग वेल. That is only because on the strength of because mind you, Congress में कोई organization structure नहीं है. But the Congress is this umbrella party, right? Gitanjali, it encompasses all kinds of views. आपके left wing भी कांग्रेसी हैं, आपके right wing भी कांग्रेसी है, center of the road भी कांग्रेसी हैं. So what is it? What does the Congress offer to the people of Haryana? Essentially, this election I can talk of, that people wanted a change. It could be anybody for them.
it was not necessarily the Congress, but here in Haryana, the Congress was the only alternative. JJP has disintegrated just before elections. INLD did not have a major base since the splinter JJP group was formed. AAP has no presence in Haryana. So where will the people go? If they want to vote for another party, right, it's only the Congress. Okay, so I want to ask you about the JJP, Bhartesh. Dushyant Chautala, जिसने 2019 में, can somebody give me some figures कि JJP के साथ क्या हो रहा है और इन्हें के साथ क्या हो रहा है? Can you just check? JJP as of now is nil, and INLD is getting a couple of seats, like 3 seats, because it's a kind of a revival for the INLD. Because all the INLD voter when the INLD split vertically in 2018, in 2019 election, the INLD, which is the Indian National Lok Dal, once upon a time the party of was in power. It has been the former Deputy Prime Minister Devi Lal, and now his children and his grandchildren. This is the third generation, fourth generation of politicians who are fighting, split across various camps. We will talk about that as well. But JJP के साथ क्या हो रहा है प्रदीप जी, ये बताइए मुझे, क्योंकि 2019 में दुष्यंत चौटाला ने अपनी 10 सीटों के साथ join the BJP and put the BJP on the गद्दी. 2019 में दुष्यंत चौटाला emerged as the kingmaker. Yeah. So why is he completely eliminated today? So उसके 2-3 रीजन ये हैं, because किसान आंदोलन में जो इसका रोल, because JJP का जो मेन सपोर्ट वोट बैंक है वो पीजेंट्री है, रूरल पीजेंट्री, स्पेशली जाट्स, एंड coupled with the Dalit votes. They 3-4 seats they got the reserved seats also. So वो किसान आंदोलन के बाद वो काफी फार्मर्स नाराज थे, इसलिए बिकॉज उनका जो मेन सपोर्ट बैंक था वो वापस वो शिफ्ट हो रहा INLD की तरफ, जो मेन पेरेंट पार्टी. लेकिन अगर यही रिजल्ट्स रहते हैं, मतलब अगर बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है और कांग्रेस उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब मेरे को ये लगता है कि जाट वर्सेस नॉन जाट का नैरेटिव चला है और INLD को अच्छा वोट मिल रहा है, जो कि कांग्रेस का वोट कट कर रहा है. That was बीजेपी स्ट्रेटजी, यही थी कि कांग्रेस का वोट डिवाइड हो INLD में, JJP में, कुछ नॉन जाट जो आप में चले जाएं, because BJP always wanted multi-corner contest. So they wanted the opposition vote, the Jat vote, to be divided between. So अगर ये trend है, तो that means the Jat and Dalit vote has not consolidated behind the Congress fully. That और कहीं ना कहीं सैलजा की भी नाराजगी का नुकसान पड़ा है. So the Jat vote. Now, the Jat vote, you said about 23-24% of the voting population, and then you had the Dalit vote, which is another 23 to 24%. 20%. So that's about 43% of the voting population. If Pradeep is saying, and if Pradeep is correct, and if these trends hold, as we know, anything is possible. There could be another complete about turn in Haryana. If the Jat and Dalit vote have not consolidated, what does this mean, Gitanjali? So basically the Jat vote got divided in the Jat parties, essentially the INLD and the Congress. The JJP, as of now, it doesn't seem, it's not too much in the scene. Yeah. So the Jat vote got divided. The Dalits were angry, given the treatment meted out to Shelja. So, and the BJP, to cut out anti-incumbency, also gave tickets to fresh faces. Like senior leaders like Ramvilas Sharma were dropped. So, which means that they were working to a strategy all along. इसमें ऐसे हो, बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने almost 40 fresh faces, जो first time. So 90 में से 40 fresh faces. Rather 89, because एक candidate तो बीजेपी ने withdraw कर लिया था कांडा के टाइम में. 89 में से almost 40 fresh faces, and most of them trace their roots to the RSS. That's why I again emphasize that you can't undermine the RSS or underplay RSS or Panna Pramukh's micromanagement, because it's only at the end of the day the number of voters you get to the polling booth that matters. Yeah, finish your thought, Gitanjali. So essentially, they did this as a counter check that you give new faces
Then they went out all over. They started very early, campaigning very early. So they were reaching out to people at a personal level, going door to door at that time when Congress hadn't even finalized its tickets. So they got an early start in this election. Okay, we are going to. I'm going to throw this back to the studio because our correspondent from Karnal, the Tribune's correspondent from Karnal, Parveen Arora, is waiting, and he has a bite and something to say to all of you. Counting has commenced for the Haryana Assembly segment. In Karnal, there are 5 assembly segments, while in Kaithal, there are 4 assembly segments. In Karnal Assembly segment, Congress candidate Sumita Singh is facing BJP candidate Jagmohan Anand, while in Garonda Assembly segment, BJP candidate Harvinder Kalyan, who a former MLA, is contesting against Virendra Rathore. In Indri segment, 2 former MLAs have locked horns. In Indri segment, Rakesh Kamboj from Congress ticket and BJP candidate Ramkaur Kashyap is contesting against each other. Similarly, in Nilokhadi, both former MLAs are contesting each other. Bhagwan Das Kabirpanthi has been filled by BJP and Congress has fielded Dharampal Gondar. Similarly, in Asand, former MLA and Congress candidate Shamsher Singh Gogi is contesting against Jileram Sharma, who is independent candidate, BJP candidate Yogendra Rana, and BSP INLD candidate Gopal Rana is in fray. Similarly, in Kaithal district, there are 4 assembly segments. In Kaithal assembly segment, the prestige of Congress leader Randeep Singh Surjewala is at stake, as his son Aditya Surjewala is contesting against former MLA and BJP candidate Leela Ram Gujjar. Similarly, in Kalayat assembly segment, where the prestige of Hisar MP Jayaprakash is also on stake, has his son Vikas Saran is contesting against BJP candidate Kamlesh Danda, INLD State President Rampal Majra, and AAP Senior Vice President Anurag Danda is also contesting from that seat. In Gula Assembly segment, Congress candidate Sultan Jadola is contesting against BJP candidate Satpal Jamba, but this constituency, in Gula seat, independent candidate Satbir Jamba and Dinesh Kaushik also are giving a tough fight to the candidates. Similarly, and the last assembly segment, Gula segment, where BJP candidate former MLA Kulwant Bajigar is contesting against the Congress candidate Devendra Hans. Amid tight security, counting is going on peacefully so far. Parveen Arora, Tribune Network. Counting has... Welcome back to the Tribune studio. I have with me Pradeep Sharma analyzing the BJP's results. The BJP is doing very well. Trends that are coming in. The whole scene has shifted from about 45 minutes or so ago when we started this discussion. We talked about a potential tsunami or a wave in favor of the Congress party. But now it seems as if the BJP has climbed back and it's clawing its way, retaining its power base for sure. Bhartesh, who covers the Congress party, Bhartesh, can you explain what you think is going on? Why is the Congress party, which was expected to do very well, हम सब कह रहे थे कि गले से गर्दन से सरिया निकालना है, तो ये जो arrogance जो हरियाणा का वोटर जो है पनिश कर रहा था या विद इन कोर्ट्स, तो इसके साथ क्या हुआ? देखिए, अभी जो ट्रेंड्स हैं उसमें बीजेपी 46 पे है और कांग्रेस 38 पे है, और अगर यही ट्रेंड रहता है आगे भी तो इसका मतलब ये है कि जो जाट वोट है वो तो कांग्रेस को मिला है, लेकिन जो दलित वोट है वो कंसोलिडेट नहीं हो पाया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो दलित लीडर ने जो कांग्रेस की इसका मतलब ये है कि जो जितने भी दूसरे अलायंसेस हैं, जैसे INLD BSP है या अपना JJP और आजाद समाज पार्टी है, और साथ में आप सैलजा की नाराजगी भी देख लीजिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि दलित वोट स्प्लिट हुआ। और तो चंद्रशेखर आजाद एक तरफ, बसपा दूसरी तरफ, तीसरी तरफ कुमारी शैलजा जो दलित लीडर हैं हरियाणा में, बहुत बड़ी दलित लीडर हैं, तो आपको लगता है कि दलित वोट इन सब में स्प्लिट हुआ है? जी, मुझे लगता है कि सैलजा की नाराजगी का कांग्रेस को काफी नुकसान। दैट मींस बीजेपी जो स्ट्रेटजी है टू स्प्लिट द दलित वोट्स, इफ नॉट द जाट, दलित वोट हैज वर्कड। सो ये मतलब एक है, बिकॉज अगर दलित वोट कांग्रेस का जाता
तो कांग्रेस की बीजेपी से कम सीटें नहीं आती, बिकॉज दलित और जाट को अगर मिला लें तो ऑलमोस्ट 42-40 जो कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन लगभग बन जाता है, हरियाणा में बनता है। चलिए, तो अब हम आई एम गोइंग टू थ्रो दिस बैक टू द स्टूडियो, क्योंकि जम्मू कश्मीर से जो आंकड़े जो आ रहे हैं, that is quite a surprise because the National Conference led by Umar Abdullah and his father Farooq Abdullah and the Congress party seem to be doing very well. There was a lot of talk about how there could be a hung assembly in J&K rather than in Haryana, but it seems as if the trends are showing a completely different picture. So too Jammu and Kashmir, where Umar Abdullah, the National Conference leader, is speaking. जीत की उम्मीद है, बाकी अल्लाह ताला तक है। और जो जम्मू कश्मीर के वोटरों ने फैसला किया है, आज दोपहर तक सारा पता चल जाएगा। कितनी उम्मीद रखेंगे कि ना, ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी की हम उम्मीद क्यों ना रखें? जमहूरियत में बिना ट्रांसपेरेंसी के क्या फायदा? जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, और लोगों का जो मैंडेट है उसके साथ छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए। अगर लोगों का मैंडेट बीजेपी के खिलाफ निकला तो बीजेपी को फिर इसमें कोई जुगाड़ और वो इस तरह की हरकतें करनी नहीं चाहिए। राजभवन को और मरकज की हुकूमत को जिस तरह हम लोगों का फैसला तस्लीम करते हैं, पार्लियामेंट में तस्लीम किया, आज जो भी लोगों का फैसला होगा, हमारे हुक्मरान जो हैं उस फैसले को तस्लीम करें, वही है। कोई नहीं, मैं तो खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। हमने कुछ अपने इंडिपेंडेंट लोग उतारे थे, उनकी कैंपेन की। मैं तो एमपी हूँ। मेरी ही गुजारिश होगी कि जो भी पार्टी सरकार बनाए वो सचमुच लोगों का काम करे, और जो जम्मू कश्मीर के रियल मुद्दे हैं, बी इट ऑटोनॉमी, बी इट रेजोल्यूशन टू कश्मीर इशू, ह्यूमन राइट्स, गवर्नेंस, नेपोटिज्म, करप्शन, उस पर काम करें, उस पर लड़ें। तो उम्मीद है कि एक अच्छे कश्मीर की हम तवक्का रखेंगे अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज वाकई ऐसा चाहें तो। भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, और इस बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। लोगों ने जो फैसला लिया होगा सरेखम तस्लीम करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेट लोग होते हैं जो वोट डालते हैं, जो अपने नुमाइंदे को चुनते हैं। लेकिन ग्राउंड सिचुएशन जहाँ तक मुझे पता है, लोगों ने बीजेपी के अगेंस्ट गुरेज में वोट डाला है, और मुझे उम्मीद है कि हम सीट निकालेंगे। जीत की उम्मीद है, बाकी अल्लाह ताला तक है। और जो जम्मू कश्मीर के वोटरों ने फैसला किया है, आज दोपहर तक सारा पता चल जाएगा। कितनी उम्मीद रखेंगे कि Welcome back to the Tribune studio. I have with me, and as over the last 45 minutes we have been discussing with Pradeep Sharma, Gitanjali, and with Bhartesh Thakur the results of the Haryana election. Now, 45 minutes ago when we started, it seemed as if the trends were in favor of the Congress party of Bhupinder Singh Hooda, but now everything has reversed. The picture has changed completely. Bhartesh was just telling us why. Bhartesh, why don't you finish your thought? Tell me what is happening. Why is the Hooda-led Congress party losing or doing so badly? जी, मैंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे रिजल्ट अभी देखा तो 46 सीट पे बीजेपी चल रही है और 33 सीटों पे कांग्रेस चल रही है। तो अगर यही ट्रेंड आगे रहता है तो इसका साफ मतलब ये है कि कांग्रेस को सिर्फ जाट वोट ही कंसोलिडेट कर पाई है अपने पीछे, दलित वोट नहीं कर पाई। दलित वोट मुझे लगता है कि स्प्लिट हुआ है एनएलडी बीएसपी अलायंस में, जेजेपी आजाद समाज पार्टी में, और हम एक चीज भूल रहे हैं कि बीच में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी जो जिसने ये कहा था कि स्टेट्स विच अलाउ स्टेट्स टू सब कैटेगराइज दी दलित को। That's right, April में। तो उससे सब क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरीज ऑफ दलित। तो उससे मुझे लगता है कि जो बहुत पिछड़े हैं दलितों में, वो भी कंसोलिडेट हुए हैं बीजेपी की तरफ, जो अति पिछड़े हैं। क्या आपको लगता है प्रदीप जी? उसमें क्या हुआ, जब भी वो जजमेंट आई थी ना, तो हरियाणा कैबिनेट ने इमीडिएटली वो बैक शेड्यूल कास्ट कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो इमीडिएटली एक्सेप्ट कर ली थी। सो दैट वाज अ स्टेप टू मूव द दलित वोटर्स। प्लस उन्होंने और भी जो एक बीजेपी ने प्रोपेगेंडा या एक प्रचार किया कि देखो दलितों, हुड्डा के टाइम पे 10 साल दलितों पे कितने अत्याचार हुए, गोहाना कांड हुआ, मिर्चपुर कांड हुआ, उन्होंने बड़ा
वो मतलब कि दूसरा उन्होंने अपने जो अचीवमेंट में ये कि दलित वाली अचीवमेंट्स की देखो, जो हमारे टाइम में दलित पे कोई अत्याचार नहीं, कोई हमने इतनी वेलफेयर स्कीम लॉन्च की, प्लस ये जो नो खर्ची और नो पर्ची वाला सिस्टम भी इन्होंने बहुत ज्यादा। इसका क्या मतलब है ये जो नो खर्ची नो पर्ची? नो मेरिट बेस्ड जॉब रिक्रूटमेंट, नो पर्ची में नो रिकमेंडेशन, नो खर्ची में नो ब्राइब। सो ये कांग्रेस पे और उससे पहले जो IND की। सो इज दिस अ वोट इन फेवर ऑफ मनोहर लाल खट्टर? क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने 9.5 साल जो है इस राज्य को चलाया है। आप सब कह रहे थे कि हम सब भी, सिर्फ आप नहीं, हम सब ने कहा कि ये जो arrogance of Manohar Lal Khattar is not going to fare well for the BJP. ये हम आप किसी हद तक कह सकते हैं, वो जितने भी ये डिसीजन हुए, नो पर्ची नो खर्ची और डेवलपमेंट वाले, हरियाणा एक हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, ये मनोहर लाल टाइम के खट्टर में सारे डिसीजन हुए। जब इन्होंने बीजेपी ने स्मार्टली देखा, जब मनोहर लाल खट्टर पे एंटी इनकम्बेंसी हो रही है, तो उन्होंने OBC कार्ड खेला 6 महीने पहले, नायब सिंह सैनी को चीफ मिनिस्टर बनाया। वो आई थिंक अगर हम ये ट्रेंड देखें, ये OBC वाला जो कार्ड है बीजेपी का, ये चौधर वाला जो कार्ड है, अभी GT रोड पे पहली बार चौधर आई, पहले मनोहर खट्टर पंजाबी थी, अब OBC ये पहली बार काफी सालों बाद चीफ मिनिस्टर बना है। तो लोगों में ये था भी चौधर आपके पास पहली बार आई है, GT रोड पे आई है, सैनिक कम्युनिटी के पास आई, OBC के पास आई है, तो लोगों ने वो चीज क्लैप कर ली भी, देखो ये हमारा, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ जाट चीफ मिनिस्टर और अदर चीफ मिनिस्टर अदर कम्युनिटी, the OBC एक बनाया है, उसको हम explain this, Gitanjali, that on the one hand everybody is talking about the जाट वोट हरियाणा में बस यही सुना जाता है कि जाट सबसे पावरफुल कम्युनिटी है, और वो जाट अगर वोट आपकी तरफ, अगर आपको वोट देता है तो यू आपकी चौधर है, आप जीत रहे हो। लेकिन इस हालात में आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि जाट वोट किधर गया है, एंड व्हाई इज द बीजेपी winning? The Jat vote, as expected, went with Huda, and some of it kind of got divided with the INLD. But if you look at the entire election campaign, BJP was constantly harping on this ill treatment of Shelja within the party. Every tweet said that, they made videos out of it to show that she was. So they were trying to woo the Dalits by saying that the Congress does not kind of want to bring up the Dalits in that sense. And they even threw a challenge to the Congress saying that Shelja should be made CM. They should announce Shelja as the CM. The BJP said that in the middle of the election. Yes. Trying to say that the Congress is a house divided, and that it was not coming out in favor of Shelja. But please explain to me, in the Lok Sabha election, अभी जो हाल ही में जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, उसमें ये दिखाई दे रहा था यूपी में 29 सीट्स जो है बीजेपी हारी है, primarily because the Dalit vote shifted in favor of the समाजवादी पार्टी and the Congress party. लेकिन इधर हरियाणा में everybody believed that the same would happen, जो obviously जो दिख रहा है जो नहीं हुआ। So how do you explain that कि अभी तीन महीने पहले यूपी के अंदर the Dalit vote shifted both from western UP and across the state, but Haryana it has not happened. Why? जी, मैं जब हरियाणा में 5 सीट बीजेपी को आई थी और 5 सीट कांग्रेस को गई थी, तो मैं एक बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेता, लोकसभा चुनाव में, तो एक बीजेपी के बड़े नेता ने मेरे को कहा कि ये अच्छा हो गया, ये हमारे लिए वार्निंग सिग्नल है, तो अब हम इस पे काम कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि जाट्स और जो दलित थे वो कांग्रेस के पास गए थे, सिख वोट जो थे वो कांग्रेस के पास गए थे, मुस्लिम वोट कांग्रेस के पास गए थे। तो बीजेपी ने यही स्ट्रेटजी बनाई कि किस तरीके से जो दलित वोट है वो डिवाइड किया जाए। तो इसीलिए आपने देखा कि तीन अलायंस हो गए हरियाणा में, और उन सबका जो फोकस था वो जाट और दलित वोट पे था। ठीक है, तो मुझे लगता है वो चीज काम की है यहाँ पे, और पूरे इलेक्शन में आखिरी के 10-15 दिन जो है उन्होंने शैलजा को इशू बनाया, कहा कि दलितों के साथ मिसट्रीटमेंट हुआ है, ये हुआ है, और आखिर में अशोक तंवर के, मुझे लगता है आने के बाद कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा अगर ये रिजल्ट आखिरी दिन पे जो है कैंपेनिंग किया। तो गीतांजलि, टू explain to us the importance of Kumari Shelja, a Dalit leader in Haryana, in this, the way these results are emerging, what role has she played in this?
By staying away from campaigning initially. By showing her नाराजगी, Yeah, कि मैं नाराज हूँ भूपेंद्र निगम के साथ. to show her. Why was she नाराज? इतनी नाराज क्यों थी कुमारी शैलजा? One, because ticket distribution was not done by taking her along. Taking her along. She was given certain tickets, but that wasn't enough for her. The Congress actually, because it is divided into so many factions, all the leaders were looking at getting their fair share of tickets. So this time, by giving the High Command reposed faith in Huda by giving him the lion's share in the ticket. Because last election, Huda's contention was that because the ticket distribution was not fair, so the Congress could not come to power. Right. So this time they gave him a free hand. The president was his. He was given a free hand in ticket distribution. So essentially, they put the entire onus of the win on him. On Huda. And the burden as well. And the burden as well. But Shelja by herself is a parallel power center within the Congress. And of course, she is the Dalit face of the party. Okay. So, Pradeep ji, I'm going to give you 30 seconds and then we have to wrap up and go back to the studio. If the BJP comes to power, and it's a big if, Gitanjali and Bhartesh, we cannot say anything. Haryana, as we have all seen, tiny little state sandwiched between Delhi and Punjab, is giving heart attacks to all the political parties, well, at least to the Congress party. But your take on if the BJP comes back to power, what does that mean? ये सबसे पहले तो हरियाणा की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड होगा बिकॉज थर्ड टाइम एनी पार्टी कमिंग टू पावर थर्ड टाइम विद कंप्लीटिंग 2 full terms, this would be first time in Haryana's history it would be happening because हरियाणा वोटर की हैबिट है 5 साल बाद चेंज करना. कांग्रेस का 2005 से लेकर 14 तक आई थिंक बहुत सालों बाद हुआ था. बीजेपी का 10 साल बहुत सालों बाद. ये this is unprecedented in Haryana's electoral history that any party will be forming government for the third time. Well, as journalists, we can only watch and analyze and report the story. And here at the Tribune, I would implore all of you to follow us on our Twitter handle, on our Facebook and Instagram handles at the Tribune CHD, which stands for Chandigarh. So please read us, read all our stories, Pradeep Sharma, Gitanjali, Bhartesh, and all our correspondents from across Haryana. We will come back to you for another discussion a couple of hours from now when things seem more stable. But back to you in the studio, and our next offering to you from the Tribune studio, from our YouTube channel here, is a discussion on Jammu and Kashmir, on what's happening. There in Jammu and Kashmir, it seems as if the tables are turning on the BJP, a completely different picture from Haryana. But from here, from my colleagues Gitanjali Gayatri, Pradeep Sharma and Bhartesh Thakur, I'm Jyoti Mehrotra. Thank you all so much for watching. And please, I would request you to watch us again when we come back a couple of hours from now. Thank you all for this for participating in this discussion. देखिए अभी we are hopeful, बराबर चल रहे हैं और आगे जैसे जैसे खुलेंगे और आगे शहरी इलाके भी खुलेंगे तो बहुत कुछ उलट फेर होगा. पहले कांग्रेस बहुत आगे दिखा रहे थे, साथ नहीं वो जायज आंकड़े नहीं थे, माफ करना मुझे, विद ड्यू रिगार्ड टू एवरी चैनल, वो जायज नहीं थे क्योंकि मुझे जानकारी थी उस वक्त तक अभी बैलेट पेपर की स्कैनिंग हो रही थी, तब बैलेट वो जो पोस्टल बैलेट है उनकी स्कैनिंग हो रही थी. अभी क्या लग रहा है सर? अब पोस्टल बैलेट भी गिने गए हैं और एक ग्राउंड भी गिना गया और कहीं पे दूसरा भी शुरू हो गया होगा, दूसरा भी गिना गया होगा और दूसरा आते ही आप देख लिया बराबर हो गया काम सारा. आगे बढ़ेंगे, आगे गिनती बढ़ेगी तो आगे बढ़ेंगे. Gaining greatly now, I believe. I don't know what you're seeing, I haven't seen it, but from what you say, I would say hold your horses. Congress will form the government with an overwhelming majority. How soon do you think the trends will change? No, it'll keep changing. You see, this is only 3rd or 4th round. There's still at least 10 more to go, at least. How many seats does Congress expect? We'll definitely form a government with overwhelming majority. I think we should look for 60 what plus. What are the reasons do you think why the Congress will form a government? Well, last 10 years you have seen how BJP just could not deliver. They promised a lot. Sabka Saath, Sabka Vikas, all kinds of hollow slogans
were inflicted on the people of Haryana. But people have turned away from that, the falsehoods, and now they want real progress. They want a real good government in Haryana, and Congress is the only alternative. Do you think the farmers' agitation has to do something with this? That also, it's a factor. Definitely it's a factor.